Okay, so now we are going to start a mock interview for our student Aman, and this mock is for PhD. So Aman, from which IIT you got interview call for PhD? IIT Kanpur, Sustainable energy. Okay. So Aman, first of all, you introduce yourself. Thank you, sir. Good afternoon, sir. Thanks for giving an opportunity. As you know, my name is Aman Kumar Pal. Recently, I have passed MTech in Energy Science from Center for Advanced Studies, Lucknow, and completed my graduate BTech in Mechanical Engineering in 2018. And my schooling is my native place. And my MTech project have the thermal energy storage in PCM, which have the recently in the concrete block, which have the reduced the overcome heating problem of the building sectors approx 6 degrees centigrades, and these have the very helpful of the in our building and green building and light building sectors. That's all about me. Thank you, sir. Okay, so what motivated you to move towards this energy sector? You are from mechanical. Why not core mechanical? Yes, sir. I am mechanical engineering and I'm graduate and MTech is energy science, and my guide have the recently to research in my in thermal energy storage, which have the totally involved in my core subject is the thermodynamics, heat transfer. So I have choose this field which have the light building sectors, which have the reduce of the energy over energy requirement in building sectors. So I motivated this. Okay, so how are you in mathematics section? Are you comfortable with mathematics? So, today I have your video seen recorded lecture. Aman, which topics of mathematics you are comfortable in? Graph, sir. Graph. Graph plot. Yes, sir. Okay. So you just draw the graph of the function. 1 minute. Yeah, we have a function fx. Yes. Equal to sine xy2. So can you draw the graph of this? Sine xy2. Just 1 minute, sir. Yeah. By 2. As you seen it? थोड़ा सा नजदीक और क्लोज करो थोड़ा सा. ओके, तो ये क्या क्या पॉइंट आपने मार्क किए हैं? मैक्सिमा कहाँ पे है? फर्स्ट राइट में. सर पाई बाय 2 सर, और पाई बाय 2 पे मैक्सिमा है. यस, मतलब 90 पे सर. ओके. मतलब आपने जो ग्राफ बनाया है, दिखाना एक बार फिर से. ऐसा ही कोई ग्राफ बनाया है ना? हाँ सर, हाँ. तो ये पॉइंट क्या है? ये वाला बताओ. ये वाला सर ये मैक्सिमा पॉइंट है, और कितना? x इक्वल टू कितना? x इज इक्वल टू 9 पाई बाय 2.
और यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी इसकी? 1 सर, π/2। 1। ओके, तो अगर हम यहाँ पे x, इस फंक्शन में x को π/2 रखते हैं तो साइन 1/2 और इंटू π/2, तो ये साइन क्या बन रहा है? π/4 कितनी π/4 वैल्यू होती है? 45 सर। तो साइन π/4 कितना होता है? sin π/4 1/√2। हम्म 1/√2 सर। So here you are saying 1 and here you are saying 1/√2. Why? सर मुझे अभी इतना कंफ्यूज हूँ सर इसमें। ओके, अच्छा मैट्रिक्स लीनियर अलजेब्रा पढ़ा हुआ है आपने कुछ? सर मैं सर याद नहीं है, इसमें रिकॉर्डिंग नहीं है सर। ओके, मैथ में कुछ रिकॉल नहीं किया हुआ है? नहीं, मैथ में सर मैंने आज आपका वीडियो देखा था ग्राफ में अच्छा, सर, अभी तो इंटरव्यू में हो ना तुम यार? हाँ हाँ तो इंटरव्यू में तुमने प्रोफेसर का कैसे वीडियो देख लिया आईआईटी का? सर आपके वीडियो देखे थे जो आपके अपलोडेड है। ओके, अच्छा ये बताओ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग सुना है कभी? यस सर। क्या होता है? न्यूटन लॉ कूलिंग सर, सराउंडिंग के टेम्परेचर से हमारी कोई बॉडी है तो उसकी गेन करती है, इसको Q इक्वल टू HA डेल्टा T वेयर H इक्वल टू हीट कन्वेक्टिव ट्रांसफॉर्म सर। और यस सर। मतलब इसकी कोई इक्वेशन भी होती है इसको कहीं पे? यस सर। मैथमेटिकली बताओ इसको जरा। Q इक्वल टू HA डेल्टा T। अच्छा ये बताओ, हाँ सर। कोई बॉडी है जैसे ये, यस सर। इसके सराउंडिंग में जो है टेम्परेचर थीटा नोट है, यस सर। और इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो है थीटा विच इज ए फंक्शन ऑफ टी। यस सर। अब थीटा जो है ये जो थीटा वेरी करेगा तो वो किस डिफरेंशियल इक्वेशन से गवर्न होगा वो बताओ मुझे। Sorry sir, I am not recording. नो आइडिया? No idea. ओके, मैकेनिकल में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके स्ट्रॉन्ग? सर थर्मल और HMT हीट मास्टर। थर्मल में क्या क्या चीजें पढ़ी बताओ जरा। थर्मल फर्स्ट क्लास, सेकंड लॉ और अवेलेबिलिटी। जीरोथ लॉ क्या होता है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरो लॉ, if body A, if three body A, B and C, A temperature body A temperature is equal to body C, and body C temperature is temperature equal to body B, so the all temperature all body temperature is equilibrium. ओके, और जीरोथ लॉ में फर्स्ट लॉ में क्या मतलब कौन सा ज्यादा है? दोनों बिल्कुल अलग हैं या कोई रिलेशन है आपस में? सर जीरो लॉ सर हमें थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है, और फर्स्ट लॉ हमें टोटल हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी के बारे में बताता है। इनमें दोनों में कोई मैथमेटिकल इक्वेशन अगर यूज होती है तो बताओ मुझे। मैथमेटिकल इक्वेशन जीरोथ लॉ में कोई मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट, कोई रिलेशन, कोई फॉर्मूला कुछ होता है कि नहीं होता है? सर नहीं पता। तो क्या पढ़ा है आपने पीएचडी के लिए फिर? वेट करो एक मिनट। यस विशाल सर। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, कंटिन्यू। गुड आफ्टरनून सर। यस हेलो, गुड आफ्टरनून भानु। अमन, योर नेम इज अमन कुमार ना? यस सर, गुड बट आफ्टरनून यहाँ सर। भानु विजिबल also. भानु is your kind of निकनेम सर। nickname. यस Bhanu, you are preparing for energy science and technology, IIT Kanpur.
यस सर। तो आपने बीटेक किया है, एमटेक किया है? सर बीटेक मैकेनिकल से और एमटेक एनर्जी साइंस। एमटेक आप कर चुके हो ऑलरेडी, फ्रॉम वेयर? सेंटर फॉर एडवांस स्टडी लखनऊ, अब सर जो 2022 ठीक है। तो एमटेक अगस्त। आपने थर्मल में किया है, तो एनर्जी साइंस। एनर्जी साइंस में किया है। तो अभी आप यू हैव एक्सप्लोर्ड सम ऑफ द रिसर्चेस इन व्हिच यू वांट टू डू योर रिसर्च फॉर पीएचडी? यस सर, थर्मल एनर्जी स्टोर में मैं करना चाहता हूँ पीसीएम बेस्ड माइक्रो अच्छा, कैप्सूल्स। आजकल मेरे को ये बताओ, पहले आप लेमन लैंग्वेज में बताओ, पीसीएम होते क्या है, ऑन व्हाट बेसिस वी चूज ए पीसीएम? पीसीएम सर फेज चेंज मटेरियल होते हैं जिसमें हम एनर्जी स्टोर, एनर्जी को चार्जिंग डिस्चार्ज करते हैं, एनर्जी को जब इसमें एनर्जी स्टोर कर ली कैपेसिटी होती है और ड्यूरिंग जब हमको रिक्वायरमेंट होती है तो हमें इससे एनर्जी मिल जाती है। कुछ एग्जांपल दे सकते हो आप पीसीएम जैसे सर का? पैराफिन है, हम्म, पैराफिन और और कोकोनट ऑयल है सर। और जनरली अगर हम देखें तो सर वाटर भी हमारा पीसीएम, मतलब हर एक बॉडी है, लेकिन जनरली अगर हम यूज करते हैं, अगर वाटर भी मैंने पीसीएम है? अपनी जो वाटर प्रोजेक्ट, को पीसीएम बोलोगे आप? नहीं सर, एक लीमेन लैंग्वेज हम समझाने के लिए, जो एनर्जी स्टोर कर सकता है, एनर्जी रिलीज कर नहीं, सकता है जब थर्मल वो। एनर्जी स्टोरेज तो बोल सकते हो। थर्मल एनर्जी स्टोरेज तो यू कैन यूज वाटर, you can use यस stone सर। as a thermal energy storage, you can use water for हाँ thermal सर। energy storage, but these are not हाँ सर। PCM। तो PCM से मतलब क्या है, ये थोड़ा समझाओ आप। फेज चेंज मटेरियल से क्या मतलब है? फेज चेंज सर, जब ड्यूरिंग फेज चेंज होती है तो हमें लेटेंट एनर्जी मिलती है, उस लेटेंट एनर्जी को यूज करके हम दूसरे फेज में होता है तो हम फेज चेंज मटेरियल यूज करते हैं। इस मटेरियल की जो अच्छा कैपेबिलिटी अमन, ये आप बताओ रिडक्टेंस। कि आपने डिफरेंट कलेक्टर्स फिर आपने जरूर पढ़ा होगा, समझा होगा। यस कलेक्टर्स सर। के बारे में बताओ, सोलर कलेक्टर्स क्या होते हैं, एंड टेल अस सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सोलर कलेक्टर। तो सर पैराबोलिक पैराबोलिक ट्रफ कलेक्टर, जिसको मैंने विजुअली देखा है, और सर इवैक्यूएट फिन अच्छा, टाइप। पैराबोलिक ट्रफ में और डिश में क्या डिफरेंस है भानु? सर पैराबोलिक में सर हमारी जो एक रे होती है उसको एक कंसंट्रेटेड वेव कर सकते हैं, और डिश में हम जिससे हीट को एक सर्टिकुलर डायरेक्शन में हम प्रोवाइड, मतलब ट्रांसफर कर नहीं, सकते हैं। पैराबोलिक कलेक्टर्स वो कंसंट्रेटेड नहीं होते? पैराबोलिक डिश में और ट्रफ में क्या डिफरेंस है? पैराबोलिक ट्रफ आपने वर्ड सुना होगा, डिश भी सुना होगा। पैराबोलिक डिश, पैराबोलिक ट्रफ, तो हाँ उनमें डिफरेंस क्या है? हाँ सर। सर अभी तो मैं रिकॉल नहीं कर पा अच्छा, आपने सुना है एक लाइन कंसंट्रेटिंग होता है, एक पॉइंट कंसंट्रेटिंग होते हैं? रहा। हाँ सुना, लाइन ऑफ पॉइंट सुना है तो लाइन कंसंट्रेटिंग कौन सा है इन दोनों में, ट्रफ या डिश? सर ट्रफ। हाँ, तो ट्रफ क्या है? वो कंसंट्रेटिंग तो दोनों है, बट डिफरेंस क्या है? पैराबोलिक क्या है? ट्रफ लाइन कंसंट्रेटिंग है, पैराबोलिक डिश पॉइंट कंसंट्रेटिंग है। नहीं? अच्छा, हाँ एक सर। अपर्चर एरिया होता है भानु, यू हर्ड अबाउट अपर्चर एरिया? अपर्चर एरिया सर कलेक्टर का एक सुना अपर्चर सुना एरिया है, होता लेकिन सर मुझे इसमें याद नहीं। है। अच्छा, सुना है तो, सोलर लेकिन मुझे कांस्टेंट याद। क्या होता है? व्हाट इज सोलर कांस्टेंट? सोलर कांस्टेंट 1380, 1800। मुझे एग्जैक्ट उसकी मतलब वो डिफिनेशन नहीं मालूम। अच्छा, सोलर इंटेंसिटी क्या होता है भानु? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सोलर इंटेंसिटी? सोलर इंटेंसिटी सर किसी पर्टिकुलर एरिया में हमारी कितनी हीट, मतलब सोलर के द्वारा एनर्जी हमें मिलती है, सोलर इंटेंसिटी के लिए, या पर यूनिट तो एरिया। कौन सा इक्विपमेंट हम यूज करते हैं? विच इक्विपमेंट वी यूज टू मेजर द सोलर इंटेंसिटी इन ए पर्टिकुलर रीजन, एट ए पर्टिकुलर रीजन? पायरोनोमीटर सर हम यूज करते हैं सोलर हाँ, वेरी गुड, इंटेंसिटी वेरी के गुड। लिए, मतलब तो सोलर। बताओ मेरे को, ये वर्किंग प्रिंसिपल क्या है पायरोनोमीटर का, कैसे काम करता है पायरोनोमीटर? पायरोनोमीटर सर टोटल हीट इंसिडेंट रेस आती है, फिर उसको एक ग्राफ में हम उसको डिफरेंट एलो शो करते हैं। सर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा सर। कोई बात नहीं। अच्छा, आप ये बताओ, आपने ग्रे बॉडी पढ़ा है भानु? ग्रे बॉडीज क्या होती है? ग्रे बॉडी सर ये ट्रांसमिट ट्रांस ये मतलब जितनी इंसिडेंट रे आती है उसको ट्रांसमिट कर सकता है। ये तो आपको बताना चाहिए, यू आर हैविंग सम मास्टर डिग्री।
ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ भानु। नहीं, ये तो पढ़ा होगा आपने जरूर। हाँ सर पढ़ा है, और सुबह ही पढ़ा था। ग्रे बॉडी, ओपैक बॉडी और सॉरी सर, इसमें मैं बहुत नर्वस हो चुका हूँ। तो अच्छा चलो, आप अपने एमटेक के प्रोजेक्ट के बारे में बताओ हमें। सर एमटेक का जो आपका एमटेक के थीसिस प्रोजेक्ट, वर्क रहा ना प्रोजेक्ट, उसके बारे में बताओ। हाँ सर एमटेक प्रोजेक्ट में हमने एक कंक्रीट सीमेंट ब्लॉक बनाई है, जिसमें हमने डिफरेंट शेप साइज के कैप्सूल बनाए और उसमें पीसीएम को फील्ड किया, जिसमें हमने OM-37 ऑर्गेनिक और 50% हमने कोकोनट ऑयल यूज किए, और इनकी फिर हमने एम्बेडेड किए और इसकी टेस्टिंग करी। फिर इसके बाद जो हमारे ब्रिक का रिजल्ट आया, तो डिफरेंट डिफरेंट कैप्सूल में जो हमारा रिजल्ट आया उसमें स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर फिन की सर्कुलर टाइप कैप्सूल थे, जिसमें सर्कुलर टाइप कैप्सूल की इफिशिएंसी हमें बहुत अच्छी मिली, और जिसमें हमने टेम्परेचर रिडक्शन लगभग 5 से 7 डिग्री टेम्परेचर तक रिडक्शन किया, जिसमें हमने टाइम लैग इन्वॉल्व किया, डिक्रीमेंट फैक्टर इन्वॉल्व किया और पीक टेम्परेचर रिडक्शन सर हमने मेजरमेंट किए थे। अच्छा, कोकोनट ऑयल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? सर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर सर वो लगभग 15 से 20 से अलग अलग पैरामीटर देखते हैं सर, सबके अलग अलग होते हैं। प्योर मतलब कोकोनट ऑयल का 15 से 20 डिग्री आप बता रहे हो यस सर, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। यस सर। तो कोकोनट ऑयल में आप किस रीजन में आपने टेस्ट किया है? सर ये मैंने रीजन लखनऊ के अपने कॉलेज के सेंटर फॉर एडवांस बिल्डिंग में मैंने तो इसको आपने टेस्ट मेरे ख्याल से ये समर के टाइम पे ही टेस्ट किया होगा, तो वहां फेस तो किया। चेंज हाँ हुआ ही नहीं होगा कोकोनट का। फेस चेंज हुआ था? फेज चेंज सर कोकोनट ऑयल का नहीं हुआ था, लेकिन जो हमने OM-37 रखा था उसका चेंज हुआ था, क्योंकि OM-37 मतलब 50% हमने कोकोनट ऑयल और 50% हमने OM-37 यूज किया था। वन क्या क्या बता रहे हो? 137 क्या है इसका कंपोजिशन बताओ। OM-37 ऑर्गेनिक मटेरियल है, और ये लगभग इसका स्ट्रक्चर मतलब इसको आप देखेंगे तो पैराफिन जैसा रहता है, और ये कंपनी ओरिएंटेड है, और इसकी मतलब मेल्टिंग पॉइंट एग्जैक्ट 37 पर हो जाती है, और इसको हमने यूज अच्छा, किया था। लेटेंट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? तो कितना है लेटेंट ऑफ फ्यूजन कोकोनट ऑयल का? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन सर 37 सर, मतलब नहीं 37 कितना 26 यूनिट बताओ। किलो जूल पर के कैलोरी। किलो जूल पर केल्विन, किलो जूल पर केजी केल्विन, सोच के बताओ। किलो जूल पर केल्विन सर। किलो जूल पर नहीं सर, रुकिए बता रहा हूँ सर, कोकोनट का पूछ रहे हैं ना आप? हाँ हाँ हाँ, यस। 26 किलो जूल पर कैलोरी सर। किलो जूल पर केल्विन क्यों बोल रहे हो आप? किलो जूल पर केजी होता है ना, केल्विन कहाँ से घुसा हाँ रहे हो अभी? हाँ हाँ अच्छा अमन, ये आपने कुछ पेपर वगैरह पब्लिश किया है इस पे, या कोई पेपर प्रेजेंट किया हाँ आपने सर। कहीं पे? हाँ सर मैंने एक मेरा खुद का कॉन्फ्रेंस हुआ है, और मैं सेकंड आता हूँ, मेरे दोस्तों ने किया, तो मैंने उसमें उसमें मेरा काम था, तो मैंने 3 पेपर है, मतलब कोई ऐसा 3 रेफर्ड पॉइंट जर्नल में या एससीआई जर्नल में यू हैव नॉट पब्लिश्ड ए पेपर? अभी सर रिव्यू में चल रहा है, ठीक है। करंट रिव्यू में तो चल रहा है। आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है बानू? व्हाई यू वांट टू डू पीएचडी? सर मैं थर्मल एनर्जी स्टोरेज पे वर्क करना चाहता हूँ, और लाइट वेट बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर बनाना चाहता हूँ, और इको फ्रेंडली बिल्डिंग में जो सर पैसिव रिक्वायरमेंट हीटिंग है उसको ओवरकम करना चाहता हूँ, ड्यू टू मतलब फेज मटेरियल यूज करके। चलो ठीक है, ये तो आपकी तरफ से हो गया। अब मैं आपसे थोड़ा अलग तरह से पूछता हूँ, व्हाई वी विल गिव यू दिस अपॉर्चुनिटी? सर इस पे सर काफी रिसेंटली काफी वर्क हुए, और मैंने जो लिटरेचर वर्क अपने स्टडी के दौरान की है, तो इसमें सर आने वाले समय में काफी फ्यूचर है, और जैसा कि मैंने देखा मतलब आप देख रहे हैं कि हमारी
हीटिंग कॉस्ट और बिल्डिंग की कॉस्ट और मतलब बिल्डिंग की जो कूलिंग कंफर्ट जोन है सर, वो बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होती आ रही है। तो इस रिसर्च के माध्यम से मैं बिल्डिंग और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को काफी रिड्यूस कर सकता हूँ, जिसके माध्यम से हमारी जो पोल्यूशन मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसको हम ओवरकम कर सकते हैं काफी हद तक। चलो ठीक है अमन, अभी आपको फीडबैक दे देते हैं फिर, है ना, ज्यादा हाँ सर, परेशान हाँ नहीं करते आपको। हाँ सर। आपका इंटरव्यू कब है? सर 28 को है। देखो टाइम तो बहुत कम है आपके पास, कल का ही दिन है। बट मैं आपको एक बात बताऊं कि एक दिन बहुत होता है। पीएचडी का इंटरव्यू, एमटेक के इंटरव्यू ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए सालों प्रिपरेशन करना है। आपने जो पढ़ा है ना वो कॉन्फिडेंट होके बताओ भानु। एक तो आप ऐसा ठीक है मत सर। बताओ कि सर मेरे को ये काम करना, आप बताओ ना कि सर आई फील आई एम हैविंग गुड टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, इवन यस आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दैट एरिया सर, दैट्स व्हाई आई एम लुकिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटी कि मैं दैट सो दैट आई विल बी एबल टू गेन सम एक्सपर्टाइज इन द एरिया ऑफ माय इंटरेस्ट, सोलर थर्मल मैनेजमेंट। तो बताओ आप कि आप में क्या पोटेंशियल है, आपके क्या स्किल सेट है, वो बताओ ना आप। मैं करना चाहता हूँ, ये तो आपका एक पर्सपेक्टिव हो गया, करना तो सभी चाहते हैं। आप यस सर। करना चाहते हो, आप में क्या कैपेबिलिटी है, क्या आप में उसके इक्विवेलेंट स्किल है, वो हाईलाइट करो, वो सुनना चाहता है। दूसरा, आप बेसिक सोलर तो आपको देखो, सोलर टर्मिनोलॉजी तो आपको देख के जानी पड़ेगी। वो पूछेंगे आपसे कि ये पैराबोलिक कलेक्टर क्या होते हैं, कंपाउंड पैराबोलिक कलेक्टर क्या होता है, सोलर कांस्टेंट क्या होता है, ये पायरेनोमीटर में और पायरोमीटर में क्या डिफरेंस है, इंटेंसिटी क्या होती है, ग्रे बॉडी क्या होती है, रेडियोसिटी क्या होता है, शेप फैक्टर क्या होता है। तो हीट ट्रांसफर का रेडिएशन चैप्टर पूरा एंड बेसिक्स ऑफ सोलर, ये देख के यस जाना पड़ेगा आपको। अभी आप बहुत कंफर्टेबल नहीं थे बिकॉज आपने जी सर। एमटेक किया है भानु, अमन, तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको सर कुछ बेसिक पता हो, और वो आप बहुत स्ट्रांगली नहीं अपने आप को प्रोजेक्ट कर पाए। ठीक है, ऑनेस्टी है आप यस में, सर। यू आर लुकिंग यस सिंसियर, बट उसके साथ साथ थोड़ा सा टेक्निकल स्ट्रेंथ होना चाहिए। ठीक है, कंपटीशन है आजकल, और इतना इजी नहीं है कि पीएचडी में एडमिशन ले लेना। तो सिंसियर एफर्ट करो, एक दिन बहुत होता है अमन, भिड़ जाओ ढंग से। अपॉर्चुनिटी इज वेरी वेरी बिग। अगर कानपुर में मिल गया ना आपको, तो आपका कैरियर बन जाएगा। अभी तक जो आपका एक सेंट्रल एक इंस्टीट्यूशन से आपने एमटेक किया है, कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं है, सब वो पाप धुल यस जाएंगे सर। और बहुत अच्छी जगह से आप पीएचडी कर पाओगे, और आपको कुछ एक पाथ मिल जाएगा, कैरियर पाथ मिल जाएगा कि भाई आगे नेक्स्ट करना क्या है। ठीक है, तो कोई प्रेशर मत रखो कि मेरे को करना ही है, जीवन में और भी बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, बट अभी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और अभी एफर्ट करो इसको कन्वर्ट करने का। तो आज तो ओके आप बहुत अच्छा नहीं कर पाए, क्योंकि ना तो आपने कुछ स्नैप लगाए थे इससे रिलेटेड, और शायद आपको एक्सपोजर भी नहीं था कि मेरे से क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, यस सर। तो यस सर। थोड़ा सा आपका जो प्रोजेक्ट है उसको बहुत लेमन लैंग्वेज में क्या किया, क्या मेजर उसमें रिजल्ट्स आए, कंक्लूजन क्या था, यस और उसका फ्यूचर स्कोप क्या है, ओके सर। वो रखो। प्रॉपर्टीज आपको टिप्स पे होनी चाहिए। कोकोनट यस ऑयल सर। क्यों यूज किया, उसका तो फेस ओके। चेंज हुआ ही नहीं, तो आप उसको फेस चेंज मटेरियल बोल क्यों रहे हो फिर। ओके सर। दूसरा सब्सटेंस है, उसका क्या कंपोजिशन रहता है। अब वो इंडस्ट्री से तो चलो आपने ले लिया, किसी ने लिटरेचर रिव्यू किया होगा, बट यू आल्सो नीड्स टू हैव सम अवेयरनेस अबाउट दैट सब्सटेंस जो आप हाईलाइट कर रहे थे, ओके सर। 137 या जो भी। तो ये थोड़ा सा मेरे को आज लगी इनपुट जो मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, और अगर आपके पास सेकंड फुल मूक है तो कल लगाना दोबारा, मेहनत करो इस पे, आज पिट जाओ। और इफ यू आर हैविंग सेकंड फुल मूक तो यू कैन अगेन ज्वाइन, वी कैन हैव अगेन सेकंड इंटरेक्शन। ठीक है भानु, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? ओके। नो सर, बस मुझे फीडबैक बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं सर अपनी मतलब वो जो क्या है ना, अंदर की भावनाएं निकाल नहीं पाता और काफी हेजिटेशन रहता है सर। इसीलिए मैंने सर एक आपकी एक ये आप। मत बोलो, देखो आपको क्या है, मैं तो आपसे बहुत टाइम दे के बहुत कंफर्टेबल करवा के आपको क्वेश्चन पूछे हैं। वहां तो क्या होंगे, 5-6 लोग होंगे, और यस चश्मा सर। भी ऐसे ऐसे कर रहे होंगे, है ना। मैं बहुत एज्ड और एक्सपीरियंस प्रोफेसर होंगे, एक कोई ऐसे देख रहा होगा आपको, तो वहां तो आप बहुत ज्यादा नर्वस हो जाओगे। आप आज भी आप नर्वस थे, आपने बोला भी कि सर आई एम नर्वस स्लाइटली। यस तो नर्वस नहीं होना है इंटरव्यू में, यस सर। इसको जस्ट टेक इट एज ए अपॉर्चुनिटी ओनली भानु। इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो और अपना बेस्ट दो, बस उस पर फोकस करो। ओके सर। ठीक ओके। है, यू आर गुड, और बस उसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देना अच्छे वे में। ठीक है भानु, ओके सर, और कोई फीडबैक सर? बस मेरी तरफ से तो यही है। कुछ आपको लगे तो यू कैन एनी टाइम कॉल मी और व्हाट्सएप इफ यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग विद मी।
थैंक यू सर। ओके भानु, गुड लक, बेस्ट लक फॉर इंटरव्यू। ओवर टू यू त्यागी सर। त्यागी सर ने आपको फीडबैक दे दिया? ओके भानु, अमन, यस सर, यस सर, यस सर। तो अभी टाइम कम है, तो एक तो जिसमें तुम्हारी स्ट्रेंथ है उनको उस चीज को पढ़ लो पहले तो, एक तो ओके सर। ठीक है। मैथ पढ़ने का टाइम ज्यादा तो है नहीं तुम्हारे पास, बस Yes, sir. बेसिक ग्राफ देख लो कम से कम। जैसे साइन एक्स बाई टू तो बहुत सिंपल ग्राफ है, साइन एक्स का Yes. ग्राफ तुम्हें आना चाहिए। ओके सर। साइन एक्स का अगर ग्राफ आता है तो साइन ए एक्स का ग्राफ बनाने के लिए सेम ग्राफ बना के हर एक पॉइंट को डिवाइड बाई ए कर दो। यस सर। तो यहाँ पे 1/2, ए की जगह 1/2 है तो 1/2 से डिवाइड कर दो, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यस, यस। तो जहां पे π/2 था वहां 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो पाई आ जाएगा। यस। ठीक है, तो मैक्सिमम yes. पाई पे आएगा इसका। ओके सर। और दूसरा, ये जो तुम थर्मोडायनेमिक्स है, जैसे तुम्हारा वो मेन कोर है, तो उसके जो लॉ तुमने बताए हैं ना, उनका थोड़ा मैथमेटिकल इक्वेशन तो पता होना चाहिए ना। सेकंड फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ में किस किस में रिलेशन होता है वो पता नहीं है आपने क्या? पता है सर, लेकिन वही सर हेजिटेशन है थोड़ा। हाँ, तो हेजिटेशन नहीं रखनी है, बताना है जो तुम्हें पता है वो चीज बताओ ना जब पूछ रहे हैं तो। ओके सर। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की इक्वेशन यार, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर डी थीटा अपॉन डी टी जो है वो प्रोपोर्शनल किसके होता है? थीटा माइनस थीटा नोट के। यस सर। ठीक है, तो वो इक्वेशन आपको आनी चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में। ओके सर। फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन रिवाइज कर लो और तीनों लॉ पढ़ लो, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, ठीक है ना, जो भी है ये अच्छे तरीके से इनको दिमाग में फिट करो। ओके सर। चलो, और अपना प्रोजेक्ट जो है उसको बताना अच्छे तरीके से, ठीक है। ओके सर, थैंक यू डरने की सर। जरूरत नहीं है इंटरव्यू में यार, जो भी होगा ठीक है, हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।